Prophase. Now understood prophase? Yes? Say yes. Yeah. So now you know the structure of the chromosome. So chromosome that is basically joined with the centromere. है ना? Chromosome, and these are the chromatids. These are the chromatids. These are chromatids and the chromosome. Okay. So what is happening next, that we are going to see into this particular phase. So the second phase is the metaphase, right? Okay. Okay. So chromosomes are composed of two chromatids that you know, and they are attached to the centromere. So this is the centromere, and these are the chromatids which are attached. So these are the chromatids, and this chromatid, they are made up of microtubule based structure present during mitosis, to which the chromosome attach and separated towards the pole of the dividing cell. मतलब क्या, हम लोग अभी इसको समझते हैं. So we are now towards the second phase. ये सब हम लोगों ने सीखा है. At the end of prophase, a falling organelle and their component disappear. Okay, and cell component disappear. So Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear membrane, ये सब disappear हो जाता है at the end of prophase. Clear? Yeah. Now the second phase is a metaphase. Now understand this metaphase very very clearly. ओके देखिए अभी इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं. ओके, नाउ दिस मेटाफेज, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द माइटोसिस. हियर द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज इजीली स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप. मतलब क्या, chromosomal morphology, if you are remembering, we have studied different types of chromosome. So this is a metacentric chromosome. When the centromere is exactly at the center, we say it is a metacentric chromosome. When the centromere is towards one pole and one short and one long fragment, so one short chromatid and one long chromatid, this type of centromere is called as, bolo fatafat, this type of centromere is called as yes, this type of centromere is called as, when it is near the one end. क्या बोलते हैं इसको, सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक. ओके, when it is near the terminal, one very very short segment and one very very long segment, this is called as acrocentric. And when the centromere is towards the terminal, this is called as telocentric. So this is the different morphology of the chromosome, and this morphology of the chromosome here you can clearly observe. So this is a transition to metaphase. अभी ट्रांजिशन टू मेटा मतलब प्रोफेज के बाद ऐसे कुछ पॉज नहीं. मैंने जैसे बोला, सेल इज डूइंग ड्रामा, एक स्टेज में फटाफट दूसरी स्टेज में जाती. सो प्रोफेज खत्म करके उसने इमीडिएटली ट्रांजिट कर लिया मेटाफेज में. जब वो मेटाफेज में आती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा निकल गया. कैन यू सी हियर एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? जैसे वो पहली वाली स्टेज में टूट रहा था. नाउ यू कांट सी हियर एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? यस. या, सो ये जो थे, okay, this centriole is now moved towards the complete opposite pole. So this is one pole and this is the opposite pole. तो complete movement हो गया इनका pole to pole पे. और अभी ये साइटोप्लाज्म जो बिखरे हो गए, अभी बिखर गए सब साइटोप्लाज्म जो थे, ये अभी यहाँ पे बिखर गए. कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. ये यहाँ पे है सेंट्रियोल, यहाँ पे दूसरा सेंट्रियोल, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी बिखर गए. तो क्या हुआ बिखर गए? तो उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना लिए और ये क्रोमोसोम को अपने साथ जोड़ लिया. नाउ हियर यू कैन सी ये स्पिंडल फाइबर, दिस इज द स्पिंडल फाइबर, राइट? ये क्या है छोटे छोटे? बोलो ये क्या है? करेक्ट, ये है एस्ट्रल रेज.
और ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रियोल। ओके, तो ये स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम को अपनी साथ लटका दिया, अटैच कर लिया। तो ये फिर से एक नया ड्रामा सेल ने शुरू किया, सो ड्रामेटिक फेज। अभी ये जो स्पिंडल फाइबर है, इस पे आपको क्वेश्चन आता है कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये कहाँ अटैच होते हैं। तो देखिए ये जो है दिस इज अ सेंट्रोमर, तो ये जो यहाँ पे है दिस इज अ सेंट्रोमर, करेक्ट। सेंट्रोमर पे आके एक प्रोटीन लग जाता है, यहाँ पे सेंट्रोमर पे यहाँ पे एक प्रोटीन लग गया, एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ओके, तो क्रोमोसोम किसके वजह से स्पिंडल फाइबर पे अटैच हुए, कौन सी पॉइंट पे उनका अटैचमेंट पॉइंट है, तो दैट इज अ काइनेटोकोर। अभी अगर आपको ऑप्शन में आता है काइनेटोकोर, सेकेंड इज अ सेंट्रोमेयर, तो आपको काइनेटोकोर पे ही टिक करना है। अगर काइनेटोकोर नहीं है एंड देन यू आर गेटिंग सेंट्रोमर, तो आपको फिर सेंट्रोमर पे टिक करना है। But the specific is spindle fiber is attaching to the kinetochore. Is that clear? Is that clear? Yes. Yeah. तो क्या हुआ, सेंट्रोमर जो थे वो पोल टू पोल पे मूव हो गए, स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम आके, अभी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कंडेंसेशन कंप्लीट, क्रोमोसोम का नहीं, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन इज कंप्लीट, तभी वो क्रोमैटिन आपको ये क्रोमोसोम के जैसे दिखने लगता है। तो ये जो है दिस इज अ क्रोमोसोम, ओके, ये क्रोमोसोम है, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, Chromatids. chromatids, right? So these are called as chromatids, and कहाँ पे अटैच हुए वो, काइनेटोकोर पे। ये वर्डिंग्स प्लीज ध्यान में रखना, प्लीज नोट इट डाउन। अभी यहाँ से देखिए ये स्पिंडल फाइबर निकला, इसने क्रोमोसोम को अटैच किया, और ये स्पिंडल फाइबर फिर यहाँ पे यहाँ आया। तो दिस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को अटैच हुआ है, this is called as a discontinuous spindle fiber. This is a discontinuous spindle fiber, or this is a chromosomal spindle fiber. Discontinuous or it is a chromosomal spindle fiber. आई बात समझ में? If you are not getting, you can interrupt me any time, but you must understand. मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है ना? या ओके। सो आर यू गेटिंग डिसकंटिन्यूअस? अभी अगर आप ये स्पिंडल फाइबर देखते हो तो ये इधर किधर भी क्रोमोसोम अटैच नहीं हुआ है ना? दिस स्पिंडल फाइबर इफ यू सी, नो क्रोमोसोम इज अटैच्ड ऑन दिस स्पिंडल फाइबर, so this spindle fiber is called as discontinuous, sorry, this is called as continuous spindle fiber. इस पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि बीच में क्रोमोसोम आके उसको अटक गया, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो। अभी ये जो सब बिखरे पड़े क्रोमोसोम थे साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होने की वजह से वो सब ये स्पिंडल फाइबर पे आके अटैच हो गए और एक सीधी लाइन में आ गए, स्ट्रेट लाइन। जैसे आप असेंबली में जमा होते थे स्कूल में, वैसे वो पूरा अभी असेंबली में आ गई, एक नया ड्रामा शुरू किया है ना? तो दिस इज अ मार्किंग ऑफ द मेटाफेज, कि वो एक सीधी लाइन में आके खड़े रह गए, and this CD line is called as a metaphase plate. This is called as a metaphase plate. वो एक लाइन में आके खड़े रह गए। थोड़ा ये परेशान करने वाला स्टूडेंट है, लाइन को छोड़ रहा है, लेकिन ये लाइन में है, लेकिन थोड़ा इधर उधर, लेकिन completely they are on the line. So that is the identification of metaphase. Getting it? और ये क्रोमोसोम अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो डबल दिख रहे हैं आपको। डबल क्यों दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे डीएनए, क्या है डीएनए कंटेंट यहाँ पे? टेल मी द डीएनए कंटेंट। प्रोफेज में क्या था डीएनए कंटेंट? प्रोफेज में डीएनए कंटेंट क्या था? 2C की 4C, या G2 में क्या था डीएनए कंटेंट? 4C.
4C. 2n थी. Yes, ma'am. हाँ, एंड क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट 4C था. अभी कुछ चेंज हुआ है क्या डीएनए कंटेंट में? प्रोफेज में कुछ चेंज हुआ क्या? डीएनए ऐड हुआ, डिलीट हुआ, कुछ हुआ क्या? नो. नहीं. प्लॉइडी में कुछ चेंज हुआ क्या? नो. नो. सो प्रोफेज में भी डीएनए 2n एंड 4C. क्लियर? मेटाफेज में कुछ हुआ क्या क्रोमोसोम में चेंज? 4C. 4C DNA content. When we are saying C is a DNA content. When we are denoting N, that is a ploidy. So metaphase में भी ploidy is 2N, chromosome content is 4C. अभी देखिए G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज तक हम लोग आए हैं. अभी दिस क्रोमोसोम, दिस स्पेसिस इज हैविंग 2N is equal to 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं. इन ह्यूमन सेल आपको ऐसे 46 क्रोमोसोम दिखेंगे, राइट? अभी दिस इज वन पर्टिकुलर स्पेसीज जहां पे 2n इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे कितना है? 2n बाय 2c. इज दैट राइट? आप देखिए और बोलिए. दिस इज 2n बाय 4c. 4C. या दिस इज 2n 4C. 2n 4C. 4c 2n 4c. हमें 4C. एंड में रिजल्ट क्या चाहिए? एंड में अपना रिजल्ट क्या होना चाहिए? 2n इज गिविंग 2n एंड 2n. लेकिन ये जो ओरिजिनल 2n था, इसका डीएनए कंटेंट वाज 2c, है ना? तो अपने को एंड इसी के जैसा सेल अपने को यहाँ पे चाहिए ना, 2 सेल. तो अपने को एंड रिजल्ट में क्या चाहिए? 2n बाय 2c, 2n बाय 2c. तो अभी अपने पास तो 2n है, लेकिन 4c को अपना टारगेट क्या है? उसको 2c बनाना है. Getting me? Yes. Yeah, everyone? Yes. Yes, ma'am. If you are not getting, I will tell you n number of time, but it should be very very clear to you. Don't think कि मेरी फ्रेंड मुझे क्या बोलेगी. हमको तो समझा, तुझे नहीं समझा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपना अपना देखो. Okay. So here if you see, this is one chromosome. ये सभी अगर आप देखते हो तो this is one chromosome and chromatid कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? क्रोमैटिड 8. कितना? ये एक क्रोमैटिड है ना, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है. वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू यहाँ पे 2 क्रोमैटिड. ये समझा? समझा नहीं समझा? नहीं Yes. समझा? नहीं बोलिए. समझा? Yes, समझा? ma'am. सभी को समझा? तो ये जो था, अभी हम लोग क्रोमोसोम सिर्फ पहले ऐसा ही ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि इसका डीएनए डबल हो गया ना, तो हम लोगों ने इसीलिए इसको ऐसा ड्रॉ किया. डीएनए डबल हो गया ना, 2n का 4c हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग 4c डीएनए. लेकिन यहाँ पे इसका कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, तो ये ऐसा दिखता है. इसमें ये पूरा एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमैटिड अगर आप देखते हो तो 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड. ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड. क्लियर? तो वो सब आपके यहाँ पे एक प्लेट पे आ गए. दैट प्लेट इज अ मेटाफेज प्लेट. और ये दोनों क्रोमैटिड ऐसे फैल गए, सेपरेट हो गए, एंड सॉरी, ये दो फैल गए ऐसे, एंड हेंस इसका मॉर्फोलॉजी अभी हमें क्लियर दिखने लगा है कि सब मेटासेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है या सैट क्रोमोसोम है या जो भी है. तो हमको यहाँ पे उसका मॉर्फोलॉजी दिखने लगा. यस. सो दैट इज व्हाट इज अ मेटाफेज. अभी तक मेटाफेज में हमने, अभी हमें क्या चाहिए फाइनल? 2n 2c एंड 2n 2c. तो अपने पास तो अभी 2n है, 4. अगर इसको ऐड करें तो 4c तो है, लेकिन और एक 2n चाहिए. वो कहाँ से आएगा अभी? है कि नहीं? क्या? Division. Yes. So cell is going to the next phase, and that next phase is Anaphase. क्या? तो अभी देखिए मेटाफेज में पहले क्या क्या हुआ वो हम लोग एक बार देख लेते हैं.
ये मैं क्लियर कर देती हूँ ड्राइंग। या तो देखिए मेटाफेज में क्या क्या हुआ। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा की पूरा निकल गया है ना। क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, सब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े थे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटिंग। आपको क्वेश्चन कैसे आते देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस, तो इट बिगिंस एट, बोलो, प्रोफेज। प्रोफेज। Condensation of chromosome begins at prophase and completed in metaphase. Please make a note. बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कि अरे क्या होगा, तो मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट, at this stage chromosomes are made up of two sister chromatid. क्या हो गया? मैम एक मिनट स्लाइड में आगे करो ना प्लीज। एक मिनट करते करते। अरे व्हाट इज दैट? This is my new laptop ना, तो sometimes I get confused इसमें क्या हो रहा है, not used to. Okay, चलो लास्ट की स्लाइड पाहिजे ईशा? हो हो हो। थैंक यू मैम। ओके चलो नेक्स्ट। तो अभी इसमें chromosomes are made up of two sister chromatid and which are held by the centromere. Sister chromatid refers to both of the identical copies of a single chromosome formed by the replication of DNA. हे समजलं का तुम्हाला? सुरुवातीला वे आई सेड कि हम लोग जब क्रोमोसोम ड्रॉ करते तो ये क्रोमोसोम, ओके, ये था जीवन। कंसिडर की जीवन फेज है, क्रोमोसोम नहीं रहता है जीवन में, बट यस आई ड्रॉ दैट क्रोमैटिन फाइबर ओनली। चलो मैं ये इरेज कर देती हूँ, यू विल गेट कंफ्यूज। तो जीवन का अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये था 2C कंटेंट ऑफ डीएनए इन द क्रोमैटिन फाइबर। एस में आ गया तो क्या हो गया, ये डीएनए था वो डबल हो गया, ये डीएनए था वो डबल हो गया ना, तो 2C का कंटेंट हो गया 4C। तो दैट 4C कंटेंट जब वो एम फेज में आएगा तो इसीलिए ये डबल कंटेंट बन जाएगा। तो हम लोग इसको फिर ए से ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, 4C हो गया। And this is one chromatid and this is another chromatid. So there are two sister chromatids formed by the DNA. समझा अभी? Yeah. Sanu. यस यस मैम। Yes, ma'am. म्यूट कर देते हो वापिस से ना, तो बोलने में टाइम जाता है फिर आप। ऑल राइट, तो देखिए, सो दिस इज अ क्रोमोसोम, ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, सेंट्रोमर हो गया, और सेंट्रोमर पे जो काइनेटोकोर लगा है वहां पे काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होने वाले हैं, है ना। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं, तो दैट इज अटैचिंग ऑन काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अप्रोप्रिएट। देखिए, काइनेटोकोर सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। Okay, site of attachment of spindle fibers formed by the centriole in animal cells and by cytoplasm in plant cell. अभी ये क्या है देखिए, in case of animal cell, I'll use this again. In case of animal cell, the division is a astral division. Astral division, क्योंकि एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं, राइट। प्लांट सेल में सेंट्रियोल होते हैं क्या? नो। नो। तो दैट वे वी हैव डिफरेंशिएटेड, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। फिर क्वेश्चन आता है कि इनके एस्ट्रल रेस कौन बनाएगा, फिर ये स्पिंडल फाइबर इनमें कौन बनाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए तो सेंट्रियोल है।
करेक्ट। तो प्लांट सेल में होते हैं मटॉक, प्लांट सेल में होते हैं मटॉक। मटॉक का फुल फॉर्म लिख लीजिए, MTOC, मटॉक होते हैं। दिस यू विल नॉट गेट इन NCERT, ओके। दिस इज लिटिल हायर अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल सेंस कि फिर आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैम प्लांट में तो सेंट्रियोल होते नहीं है, आपने तो बोला एस्ट्रल रे सेंट्रियोल से निकलते हैं, तो उसमें फिर कौन निकालेगा स्पिंडल फाइबर? तो देयर आर द मटॉक्स, एंड मटॉक्स आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ओके। इन प्लांट्स देयर आर द मटॉक, ये मटॉक ऐसे दो पोल पे होते हैं, एंड दीज आर microtubule, MT is microtubule organizing center, and this mattock helps to form the spindle fibers, okay। and so animal में astral rays निकलते हैं, hence it is a astral division. In case of plant the division is anastral, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है तो उससे एस्ट्रल रेज नहीं निकलते, ओके। समझा ये? एस्ट्रल और उसको Yes. एम्फी एस्ट्रल भी कहते हैं, एम्फी एस्ट्रल। क्यों एम्फी एस्ट्रल? क्योंकि दोनों एम्फीबियंस, पता है ना आपको, प्लैंट पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, सो एम्फी, बोथ पोल, दोनों पोल पे स्पिंडल फाइबर निकले थे ना, दोनों पोल से निकले थे, सो एम्फी फ्रॉम वन पोल एंड अदर पोल, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर निकले, सो it is amphiastral or astral mitosis. In case of plant there is no centriole, so there are the mattock, and which helps to form the spindle fiber, and hence it is a unastral type of division. क्लियर हुई बात? तो अभी हमने क्या सीखा? वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू कितने क्रोमैटिड? 2 क्रोमैटिड्स, Yes. Yes. तो माइटोसिस पे क्या हुआ? 2n and 4c रहा, क्रोमोसोम नंबर बढ़े क्या? नहीं बढ़े, राइट? ऐसा नो? तो अभी अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे बाय 4c, ओके। Yes. या चलो आगे चलो। Okay, now next. तो काइनेटोकोर्स समझा, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स लगेंगे, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। क्लियर है? या सो Yes, नेक्स्ट, ma'am. so the metaphase is characterized by chromosome at the equatorial plate, or this equatorial plate is also called as a metaphase plate. देखिए अभी ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है ना। So these are the chromosomal spindle fiber और discontinuous, और जहां पे नहीं लगे वो continuous. So metaphase thick and coiled का क्या क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, thick and coiled metaphase, chromosomes are lined up on the metaphase plate and spindle fibers are attached to the chromosome. ये प्रोफेज में था क्या? स्पिंडल फाइबर नहीं, सिर्फ बनना चालू हुए थे, लेकिन क्रोमोसोम इधर उधर अभी भटके हुए थे। लेट प्रोफेज में इधर उधर, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट टूट गया मेटाफेज प्लेट में, तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में भटक रहे थे। अभी अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम एक सिंगल सेल में इधर उधर भटक रहे थे। वो भटक रहे थे तो उनको पकड़ के लाना जरूरी था, तो इसलिए वो काम स्पिंडल फाइबर ने कर दिया और उनको पकड़ के लाके एक लाइन में खड़ा कर दिया। चलो खड़े रह जाओ, तो खड़े हो गए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ which phase? Telophase. Yeah. So we are towards now the telophase. Yeah. So you understood this is a metaphase plate where all the, हाँ अभी इसमें एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा,
मैं आपको वापिस से ये पूछूंगी व्हेन आई विल डू द मियोसिस। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम की कितनी लाइन दिख रही है, 1 की 2? बोलिए, क्रोमोसोम की लाइन कितनी है? 1 लाइन है कि 2 लाइन? सिंपल क्वेश्चन है। 2, 1. 1 या 2? या 1. 1 बोल रहे हो आप मुग्धा? या चलो मुग्धा ने 1 बोला, चलो और कोई बोलेगा? क्रोमोसोम की आपको कितनी लाइन दिख रही है, मेरा सिंपल सा सवाल है। मुग्धा सेड मुझे 1 लाइन दिख रही है, ठीक है। और किसी को क्या दिख रहा है? कम ऑन, हरी अप, कंप्लीट करना है। नहीं तो फिर अगेन आई टेक द थर्ड सेशन बिकॉज टुडे आई प्लान कि मैं आपका माइटोसिस कंप्लीट करूंगी, नहीं तो मैं और एक सेशन आगे करूंगी। 1 दिसते मॅम माणूस. तुला पण 1 दिसते, चलो इसको भी 1 ही दिख रही। बोलो, 5 लोग हैं ना आप, मुझे 5 आंसर चाहिए। मुग्धा का हो गया, ईशा का हो गया। चलो प्रथमेश, आपको कितनी लाइन दिख रही है? 1. 1 ही दिख रही। ओके गौतम? 1. 1 दिसते। देवश्री? 1 दिसते, एग्जैक्टली। तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन क्रोमोसोम की है क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम है ना। दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज 2 क्रोमोसोम, दिस इज 3 3rd number chromosome, 4th number chromosome, and thus how there will be the 46 chromosome if you consider the human cell, है ना। Here we are just considering 2n is equal to 4. So we have this 46 chromosome in one line. In case of meiosis, there would be only one line of chromosome. Now this you remember, I'll ask you because they will give you the diagram and they will ask you identify whether it is a metaphase of meiosis or metaphase of mitosis. तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना। ओके चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये हो गया मेटाफेज के बारे में। What is a metaphase plane? The plane of equator of the cell into which chromosomes are positioned during the metaphase. Chromosomes are coming in one line, so that is a metaphase plane. Clear? लिख रहे हैं आप लोग या चेंज कर दूं स्लाइड? Yes. ओके चलिए नेक्स्ट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज, क्या क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेटाफेज है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, chromosomes are moved to the spindle equator and gets aligned on the metaphase plate and all that. Okay chalo, the most dramatic period of the cell cycle is, bolo so M phase. M phase. M phase, 4th option. yeah, 4th option. Chalo next. Equational division is, oh sorry, Mitosis. Mitosis. mitosis, ये सबको ही पता है। Equational is mitosis. Mitosis has been divided into 4 stages. exactly 4 stages. 3rd Four- option. 4 stages. Metaphase plate is seen in Metaphase. metaphase. Okay. Now the anaphase. Listen carefully with anaphase. अभी ये सबसे ज्यादा dramatic है and ये shortest है. So you have to remember. Yeah. So this is the आपको दिख रही है ना बोर्ड, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, ma'am. Yeah. So this is the shortest phase. Longest कौन सी थी? Prophase. Prophase. So this is the shortest phase of an mitosis. Okay.
नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्रोमोसोम ये जो एक लाइन पे अटैच थे, है ना, मेटाफेज में ऐसे थे ना सब क्रोमोसोम, यहाँ पे सब मेटाफेज पे अटैच थे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो एस्ट्रल रेज है ऊपर के, ऊपर वालों ने सेंट्रोमर को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। सो यहाँ से वो स्प्लिट हो गया, मतलब ये जो था, इलेबोरेट अगर मैं करूं इसको, ये सेंट्रोमर था, सेंट्रोमर यहाँ से स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमर यहाँ से स्प्लिट हो गया। तो क्या हुआ, ये ऊपर एक आ गया पार्ट इसका, और नीचे एक पार्ट आ गया, दिस। अभी जितने सेंट्रोमर, व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर, नंबर ऑफ सेंट्रोमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेयोसिस में लगेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये एक सेंट्रोजोम पे ये क्रोमोसोम लग गया, यहाँ पे ये एक सेंट्रोजोम पे, सेंट्रोमर पे ये एक क्रोमोसोम लग गया। तो कितने क्रोमोसोम, अभी 2n अपना 4 था, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, टेल मी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पे? जो भी है बोलिए, जो भी आ रहा है मन में बिंदास बोल दीजिए। सेंट्रोमर था यहाँ पे, सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग हो गया, दो थे वो स्प्लिट हो गए, ऊपर की पोल ने ऊपर को खींचा, नीचे की पोल ने उसको नीचे पे खींचा, सेंट्रोमर का स्प्लिटिंग हो गया। दिस इज अगेन अ ड्रामेटिक चेंज, सेंट्रोमर का यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया, जितने सेंट्रोमर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोजिंग ये एक है तो ये एक क्रोमोसोम, क्योंकि सेंट्रोमर यहाँ पे दिख रहा है, ये एक है तो ये दूसरा क्रोमोसोम। तो ऐसे यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए अभी? बोलिए फटाफट, मतलब नहीं समझ रहा है क्या? यू नॉट अंडरस्टँडिंग? परत एकदा रिपीट करता का मॅम? सेंट्रोम आता काय झालं, मेटाफेजला ते सगळे असे इथे येऊन अरेंज झाले होते ना, एका प्लेन एका लाईनीत ते येऊन चुपचाप उभे राहिले, असेंब्लीला येतो तसं, हो की नाही? येस. आता आम्ही हा इथे इलॅबोरेट केला, हा सेंट्रोमर जो होता, हा सेंट्रोमर जो होता हा स्प्लिट झाला, म्हणजे हे पण दोन झालेत सेंट्रोमर, इथे एक सेंट्रोमर झाला, इथे एक सेंट्रोमर झाला, इथे तो एक क्रोमॅटिड आणि इथे एक क्रोमॅटिड जॉईन होऊन गेला। आपण काय म्हटलं होतं, 1 क्रोमोझोम इज इक्वल टू 2 क्रोमॅटिड, आठवतं ना? या आता हा जो एक क्रोमॅटिड होता हा वर निघून गेला, एक क्रोमॅटिड खाली निघून गेला, पण सायमल्टेनियसली त्यांचे सेंट्रोमर पण स्प्लिट झाले, तो सेंट्रोमर हॅज ऑल्सो स्प्लिट डाउन। तो जितके सेंट्रोमर तितके नंबर ऑफ क्रोमोझोम। तर आता इथे किती, हा एक क्रोमोझोम मधनं किती क्रोमोझोम होऊन गेले आता? 2. दोन झाले ना, 2. वरती एक क्रोमोझोम गेला, दोन. खाली एक क्रोमोझोम गेला, दोन झालेत की नाही, हे असे अरेंज होतात, असे अरेंज होतात। म्हणजे मग इथे 2n इज इक्वल किती झाले, 4n, प्लॉइडी किती झाली इथे, क्रोमोझोम 8 झाले ना, आपण 2n इज इक्वल टू 4 म्हणत होतो की नाही? येस. Yes. मग आता प्लॉइडी किती झाली, 2n राहील का प्लॉइडी? क्रोमोझोम 8 झालेत ना आता, किती झाली आता? 4n. अनाफेजला प्लॉइडी 4n होऊन गेली की नाही? 4n झाली. हे कळलं का? हो. अनाफेजला प्लॉइडी 4n झाली, Yes, ma'am. कंटेंट किती राहिलं? काय मॅम? डीएनए कंटेंट किती राहिलं? 4. डीएनए कंटेंट, डीएनएचं रेप्लिकेशन झालं का? ते कुठे होतंय? फक्त एस फेज मध्ये होतं ना? हा. इथे कुठे एस फेज आली का परत? नाही. मग आता- डीएनए कंटेंट किती राहील?
2C. टूच राहील ते. 2C कशी राहील? G1 S G2. ओके, तुम्ही परत एक सेशन जॉईन कराल हे संपल्यावर. कोणाला क्लास आहे का? टीचर मला आहे. तुला क्लास आहे? तुला पण क्लास आहे. बरं ठीक. आता हे सेशन संपेल. ओके, सो प्रोफेज झाला, मेटाफेज झाला, एनाफेज झाला. इथे आपण काय बघितलं होतं? 2N प्लॉइडी आहे, 2C डीएनए. इथे 2N प्लॉइडी डीएनएचं सिंथेसिस झालं, प्लॉइडी बिकम 4C. G2 मध्ये 2Nच राहिलं, 4C झालं. प्रोफेज मध्ये 2Nच राहिलं, 4C झालं. मेटाफेज मध्ये 2Nच राहिलं, 4C राहिलं. एनाफेज मध्ये आपण काय म्हटलो? ते तुटलेच सेंट्रोमर आणि म्हणून प्लॉइडी चेंज झाली. प्लॉइडी किती झाली? इथे 4C झाली, 4N झाली. आय एम सॉरी, 4N झाली. हो ना, कारण 2N इकडे गेले आणि 2N इकडे गेले म्हणजे टोटल अजून ते सेल मध्ये डिवाइड झालीये का? 2 सेल झाल्या का? नाही, ती एकाच सेल मध्ये सगळं चाललंय ना. जो काही ड्रामा चाललाय तो एकाच सेल मध्ये चाललाय. हो, म्हणून ती एका सेलची प्लॉइडी 4N झाली. पण डीएनए कंटेंट किती राहील? सेम. सेम राहील ना. 4C. कारण डीएनएचं कुठे रेप्लिकेशनच नाही झालं. डीएनए कुठे रेप्लिकेट होतोय? फक्त एस फेज मध्ये. एस फेज पासून जो काही तो पुढे घेऊन येणार आहे तो तेवढाच 4C डीएनए राहणार आहे. अनलेस अँड अंटिल 2 सेल होत नाही. आपला एम काय आहे? आपल्याला 2N 2C चा जो सेल होता त्या 2 सेल करायच्या आहे. 2N 2C 2N 2C. आलो का जवळ आपण आता? 4N 4C झाले ना, जवळ आलो ना आता. हो, हो. Yes, ma'am. आपण हे सगळं साध्य करणार. So that is how is an anaphase. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. येस. म्हणजे इथे हा जो क्रोमोझोम होता त्याचा हा मध्ये सेंट्रोमर होता, तो सेंट्रोमर स्प्लिट झाला है ना. स्प्लिट झाल्यामुळे हा एक वरती घेऊन गेला आणि हा एक खाली घेऊन आला. म्हणून जेवढे सेंट्रोमर तेवढे नंबर ऑफ क्रोमोझोम. मग इथे हा एक सेंट्रोमर आला, इथे हा एक सेंट्रोमर आला. म्हणून याची जी 2N ची प्लॉइडी होती 2N इज इक्वल टू 4. आता हे झालं 4N इज इक्वल टू 8. दॅट इज हाऊ इज anaphase. दॅट इज व्हॉट इज anaphase. हे इथपर्यंत कळलं तर तुम्हाला कळलं. ठीक आहे. आता Yes. बघू सेशन. ठीक आहे, हो मॅम. इथपर्यंत आपण थांबूया आणि उद्या परत आपण, कारण ह्यांना क्लास आहे नाही तर मी अजून एक घेतलं असतं तुमचं.